So good morning everyone. In today's lecture we are going to cover these two important topics. These are very important from the point of view that it is used in industry as well as it is used to win the Kaggle competitions. Plus you have not studied this topic before. So what I have done is I have tried to simplify the process for you. I have taken most of the good examples. Numericals are also in detail. So we will look into these things in detail today. So boosting, as we know, it is one of the ensemble models. So I wanted to make you revise the ensemble modeling before starting the boosting. So ensemble models help us to bring the diversity of multiple models. Okay? We take the weak learners and then we combine them to get the final output. This is one of the boosting method, but then there are multiple types of ensemble models. Bagging is one of the model. So these are the four types of uh, ensemble learning models which we know. Voting is one of the most commonly used ensemble model, जिसमें we what we do is we take the votes of the classifiers or the regression. तो we take the mainly voting. एवरेज करना है या उसका मोड लेना है वो अलग बात है. Then there is one of the model called stacking. Stacking based ensemble modeling में क्या होता है? So stacking में what we do is we have some classifiers, ठीक है, और उसके बाद आप एक और यहाँ पे क्लासीफायर लगा दो rather than just taking the voting. एक और क्लासीफायर लगा दो, क्लासीफायर नंबर 4. if this is classifier 1 2 3, classifier 4, and then you will take the output. तो after this stage of modeling एक और मॉडल लगा दो, this is stacking. And so this is how the bagging was. We have already studied bagging in random forest. Bagging was one of the technique जिसमें we were saying that within random forest we have the bootstrap samples in which we generate similar kind of rows. If we have the rows based data set, we will generate equal number of rows. There may be a duplicacy, but वो bootstrap samples के basis पे we will do some prediction, and in the end we will do the ensembling of all the outputs. उसमें आप average ले रहे हो या voting, again the technique is same, but यहाँ पे we have multiple models जो individually अपना अपना contribution दे रहे हैं, and then we are taking the average or whatever we were trying to do. So bagging works well when the algorithm used to build our model has high variance. This means that the model built changes a lot even with the slight change in the data. तो ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है एंड बैगिंग विल हेल्प अस अगर हमारे डेटा सेट में हाई वेरिएंस है. हाई वेरिएंस मींस ओवरफिटिंग हो रही है, लाइक इट वाज इन द डिसीजन ट्रीज में ओवरफिटिंग हो रही थी. वी वर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है. सो उस केस में हम बैगिंग यूज करते हैं. नाउ बूस्टिंग का जो आइडिया है, बूस्टिंग इज वन ऑफ द एनसेम्बल लर्निंग मेथड. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग द इनिशियल डेटा सेट and then we are trying to get the output, और उसके आउटपुट में कुछ ना कुछ मिसक्लासिफिकेशन होगा. जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर. कुछ ना कुछ मिसक्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, जो भी उसने गलत करा होगा. तो उस मिसक्लासिफिकेशन को हम आगे भेज देंगे और अगले वाले डेटा सेट में उसको इम्प्रूव करेंगे जो पीछे गलती हुई है. उसी मिसक्लासिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा एंड बेस्ड ऑन दोज मिसक्लासिफिकेशन we will train our model again, and this will process and this process will go on. So base models with high bias and low variance, each model target the error of the previous model. So मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे जो हमारा मिसक्लासिफिकेशन हो रहा है ये हमारा एरर है पिछले मॉडल का, एंड वी वांट टू इम्प्रूव ऑन इट. तो हम एरर पास कर रहे हैं और उसी के ऊपर ट्रेनिंग कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं. एन एनसेम्बल मॉडल विद द लो बायस देन इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है. तो ये हो रहा है. आफ्टर दैट, सो बूस्टिंग में होता क्या है, दीज इंडिविजुअल मॉडल्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द सब्सिक्वेंट मॉडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द एरर्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल एंड ईच सब्सिक्वेंट मॉडल ट्राइज टू करेक्ट द एरर ऑफ, मतलब ये आपको अभी बताया है, ठीक है. एंड बूस्टिंग हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं और कैसे यूज होता है.
इट कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द टेक्निक। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिसीजन ट्री पे लगाओगे, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी मॉडल के लिए लगा सकते हो। इवन फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन और द एसवीएम, boosting can be done for that also. And it creates the sequential models, one by one मॉडल जनरेट करता रहता है और पुराने वाले की गलतियां इंप्रूव करता रहता है. So it means we are trying to combine the weak learners into the strong ones. And weak learners we will see in some time कि weak learner होते क्या हैं. And multiple approaches of boosting are there: adaptive boosting, gradient boosting. ठीक है, तो intuition of adaptive boosting देख लेते हैं. एक सेकेंड. हाँ, तो इंट्यूशन ऑफ एडेप्टिव बूस्टिंग इज सिंपल. जो अभी आपको पीछे बताया था वो एडेप्टिव बूस्टिंग ही था, दैट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द मिसक्लासिफिकेशन पार्ट. अब इसमें दोनों का मैं एक बार फटाफट से बताता हूँ होता क्या है. कोई लाइट सा कलर मिल जाए. हाँ, तो एडेप्टिव में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी हैव ए मॉडल, उसका कुछ मिसक्लासिफिकेशन हुआ और उसी मिसक्लासिफिकेशन को हम इम्प्रूव कर रहे हैं अगले मॉडल का डेटा सेट बना के, फिर ट्रेन करोगे, दोबारा से उसका मिसक्लासिफिकेशन निकालोगे. तो ये एडेप्टिव है. बट ग्रेडियंट में क्या हो रहा है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट द ग्रेडियंट्स इंस्टेड ऑफ दिस मिसक्लासिफिकेशन. हम मिसक्लासिफिकेशन के बजाय ग्रेडियंट्स प्रिडिक्ट करेंगे ऑफ द एरर. जो भी हमारा एरर आएगा उसका ग्रेडियंट निकालेंगे. We will look into it in some time, but the basic idea for adaptive boosting was this only, कि हम अपने मॉडल के मिस क्लासिफिकेशंस के ऊपर काम कर करके इम्प्रूव कर रहे हैं वीक लर्नर्स को. सो नाउ एप्लीकेशंस ऑफ बूस्टिंग इज, मैंने अभी बताया था अभी 1-2 मिनट पहले, दैट बूस्टिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में. एंड फॉर द बैंकिंग सेक्टर, अगर आपने कोई इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट होता है जैसे बैंकिंग में, या फिर आपने फ्रॉड डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए बूस्टिंग लगा सकते हो. यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर चर्न प्रिडिक्शन, के कौन सा कस्टमर हमारा छोड़ने वाला है. फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन से किसी ने शिफ्ट होना है जियो पे, तो वो वाला उसको चर्न बोलेंगे, जो हम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहते हैं. तो अगर वैसा कुछ करना है तो उसमें भी बूस्टिंग लग जाएगा. ई कॉमर्स, इफ यू वांट टू सी दैट व्हाट इज द इंटेंट ऑफ कस्टमर बाइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऑल दीज काइंड ऑफ एरियाज, इवन द लॉजिस्टिक सेक्टर, सप्लाई चेन सेक्टर, हेल्थ केयर, हर जगह बूस्टिंग लग सकता है. एंड इफ यू आर ए रेगुलर कैगल पे, अगर आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हो, then you will know that most of the championships are won by XGBoost model compared to deep learning models, because XGBoost is comparatively faster than the deep learning training. कई बार ऐसा होता है XGBoost जीत जाता है. सो वीक लर्नर्स पे फोकस करते हैं पहले, दैट वीक लर्नर्स होते क्या हैं. सो एज डिस्कस्ड अर्लियर, बूस्टिंग इज एन अप्रोच वेयर द इंडिविजुअल मॉडल्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ द प्रीवियस मॉडल. ये आपको बता दिया. एंड दीज इंडिविजुअल मॉडल्स आर वीक लर्नर्स. जो आप मल्टीपल मॉडल्स को कनेक्ट कर रहे हो, ये वीक लर्नर्स हैं. ठीक है. एंड टिल नाउ ऑल द मॉडल्स you have learned are strong learners initially. Whatever we have done, अगर जैसे हम लॉजिस्टिक यूज कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप एसवीएम ट्रेन कर रहे हो, या आप केएनएन ट्रेन कर रहे हो. इनफैक्ट केएनएन में तो ट्रेनिंग होती भी नहीं है, वो तो सिंपल वोटिंग के बेसिस पे देख लेता है क्लस्टर्स बना के के नियरेस्ट नेबर्स. एंड डिसीजन ट्रीज हैं, उसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज थे हमारे पास. ठीक है, ID3 हो गया, C4.5, या फिर थर्ड वाला कार्ट मॉडल हो गया. तो उन सबको हम इंडिविजुअली देखेंगे तो डिसीजन ट्रीज तो चलो माना कि कुछ वीक लर्नर होते हैं, बट एसवीएम अपने आप में, लॉजिस्टिक अपने आप में अच्छी अच्छी एक्यूरेसीज हमें दे देते हैं. बट अब देखते हैं वीक लर्नर क्यों कह रहे हैं हम इसको. सो वीक लर्नर आर कंबाइंड सीक्वेंशियली सच दैट ईच सब्सिक्वेंट मॉडल्स improve. ठीक है, पता है. Through the weak learners, you can do the following: reduce the variance of the final model and make it more robust, generalizability हम ज़्यादा बना सकते हैं, and train the ensemble quickly, resulting in faster computation time. कैन एनीवन टेल मी दैट, वैसे तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है डिसीजन स्टम्प जो होता है, जैसे डिसीजन ट्री होता है विद ए डेप्थ ऑफ 1, तो उसको हम डिसीजन स्टम्प बोलते हैं. सो ए वीक लर्नर मॉडल इज नॉट कैपेबल ऑफ ओवरफिटिंग. इसमें ओवरफिटिंग तो नहीं होगा, ओवरफिटिंग मींस डेप्थ ज़्यादा है. सो इट हैज़ टू बी ए एटलीस्ट बेटर देन द रैंडम गेसर. इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्रिडिक्ट समथिंग, जैसे हाउस प्राइस है, या लेट्स से यू वांट टू प्रिडिक्ट इफ समवन हैज़ ओबेसिटी और नॉट. ठीक है. अब ओबेसिटी और नॉट का अगर रैंडम गेस मारना है तो वो या तो वो है या नहीं है. बट इफ वी हैव लेट्स से
we are saying that if someone has fast food एवरी ऑल्टरनेट डे, तो उसका थोड़ा सा है चांस कि वो ओबीज होगा। ठीक है, तो हल्का सा बेटर गेस हो जाएगा अगर हमें उस बंदे के बारे में थोड़ा सा पता है। तो इन ए वे वीक लर्नर हमारे रैंडम गेस से तो बेटर है, उसको हल्का फुल्का आइडिया है बिकॉज वी हैव ओनली डेप्थ ऑफ वन, बट देन इट इज नॉट वेरी गुड अपने आप में। सो एनी मॉडल कैन बी वीक learner, linear regression, decision tree. So decision stump is one of the very shallow decision tree having depth of one. तो वीक सो वीक लर्नर का तो हमें समझ में आ गया दैट हाउ द वीक लर्नर वर्क्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन रिग्रेसर। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन जैसे है, तो इसमें वी विल टॉक अबाउट टू थिंग्स नाउ। वन थिंग इज रिग्रेशन एंड द अदर थिंग इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, दोनों के एक एक न्यूमेरिकल मैंने उठा के पूरा सॉल्व किया हुआ है। बट लेट्स सी दैट हाउ द ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन रिग्रेसर वर्क्स। ग्रेडियंट बूस्टिंग इज सिमिलर टू एडा बूस्ट। एडा बूस्ट का मैंने बहुत डिटेल यहाँ पे नहीं डाला, आपको बेसिक बता दिया कि एडा बूस्टिंग में हम नॉर्मली मिस क्लासिफिकेशन रेट के बेसिस पे काम कर रहे हैं। We will focus on gradient boosting. So it trains many models in a gradual, adaptive, and sequential manner. ठीक है. However, the major difference between the two is that how do they handle the shortcomings. AdaBoost में we are focusing on the misclassified या wrongly predicted एरर। ठीक है, जो भी हम मिसक्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्सेस जो ग्रेडियंट बूस्टिंग है, ग्रेडियंट बूस्टिंग में वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रेडियंट्स इन द लॉस फंक्शन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये एडेप्टिव boosting जो है एडा बूस्ट, it is working on the misclassification and this is working on the gradient boosting, gradients of the loss function. So now let's say we have this example, we have to predict the house rent and we have these three independent variables, area, room and furnished. ठीक है, and this is my rent in thousands, 15,000, 10,000, 35,000 ऐसे कुछ करके रेंट लिखे हुए हैं। now we want to find the gradient boosting हमने अप्लाई करना है and we want to do the prediction well। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टारगेट वेरिएबल। तो टारगेट अपना रेंट था, पीछे हाईलाइट भी किया हुआ था। ठीक है, ये येलो वाला इज माय टारगेट वेरिएबल। एवरेज 27.7 है, सबका एवरेज ले लोगे इट विल बी 27.6666 ऐसे कुछ आएगा। तो वी हैव रिटन 27.7। फॉर रिग्रेशन वी स्टार्ट विद द लीफ दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द टारगेट वेरिएबल। this leaf will be used as a baseline to approach the correct solution in the next step। तो वन बाय वन हम improve करेंगे। इनिशियली हमने ये एवरेज ले लिया एंड हियर द एवरेज रेंट इज 27.7 के। नाउ रेसिडुअल एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। my error will be initial the actual value minus predicted value, so 15 minus 27 minus 12.7, 10 minus 27.7 minus 17.7। तो a minus p कर रहे हैं हम, एक तरह का रेंट माइनस एवरेज। ठीक है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड हो गया अपना, रेसिडुअल एरर बन गया। नाउ थर्ड स्टेप इज टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑन द टॉप ऑफ रेसिडुअल्स। अपने पास अगर ये रेसिडुअल्स बन गए हैं, नाउ वी कैन जनरेट ए डिसीजन ट्री। ठीक है, बना सकते हैं और बनाना हमें आता है। सो वी विल नाउ बिल्ड ए मॉडल which is aimed at predicting the residuals. In other words, every leaf will contain a prediction as to the value of residual। ठीक है, तो हमें इनके बेसिस पे इन सबको क्लासिफाई करना है। तो ऐसा करके लेफ्ट हैंड साइड पे इनिशियली अगर आप जैसे डिसीजन ट्री बना रहे हो, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन गिनी इंडेक्स एज माय कार्ट मॉडल वाला पैटर्न के बेसिस पे। लेट्स से वी हैव दिस, हमने उसको रूट ले लिया स्क्वायर फुटेज ग्रेटर देन 500 एंड अगर फर्निश्ड है तो यस है तो 27.3 के 27,500 का हो गया। ठीक है, जो हमारा है। एंड अगर फर्निश नहीं है तो 7.3 के या 11.3 के आसपास का आपका रेंट बैठेगा। एंड फॉर रूम ग्रेटर देन 1 माइनस 12.7 के एंड दिस। तो ये रेजिडुअल्स हैं। ठीक है, ये रेंट नहीं है, ये रेजिडुअल एरर है, कितना एरर बैठ रहा है। तो उसके बेसिस पे हमने ऐसे बना लिया। नाउ वी ऑल्सो वांट टू गेट वन पर्टिकुलर वैल्यू इंस्टेड ऑफ टू वैल्यूज। तो हम इनका एवरेज ले लेते हैं। इट इज बेटर टू टेक द एवरेज। तो यहाँ पे 7.3 11.3 का एवरेज आ गया 9.3 एंड सिमिलरली इधर आ गया माइनस 16.7। नाउ दिस इज माय फाइनल डिसीजन ट्री 1। ये फर्स्ट डिसीजन ट्री है, इसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू जनरेट द न्यू एरर। ठीक है, प्रिडिक्टेड रेजिडुअल पहले देख लेते हैं। नाउ प्रिडिक्टेड रेजिडुअल पीछे जो हमने लेटेस्ट ट्री बनाया है राइट हैंड साइड वाला, इसके बेसिस पे हमने दोबारा प्रिडिक्शन किया एंड बेस्ड ऑन दैट माय प्रिडिक्टेड एरर इज कमिंग आउट टू बी -12.7 -16.7। एक्चुअल एरर ये था।
तो अब इन दोनों का भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑन टॉप। सो वी विल नाउ बिल्ड, ठीक है ये तो पता है। नाउ हमने उसको, जो हमारा प्रिडिक्टेड वाला रेजिडुअल था हमने ये ले लिया, ठीक है, -12.7, 16.7 ये आ गया। नाउ वी ऑल्सो वांट टू गेट द वैल्यू, क्योंकि मेन टारगेट वाज टू प्रिडिक्ट द रेंट। तो 15,000 वाला रेंट था जो मेरे एक बार डिसीजन ट्री ट्रेन करने से 26.4 आ गया। 15 की बजाय 26.4 कर रहा है, जो पहले 27.7 था बाय डिफॉल्ट। 10 वाले को जो हम 27.7 करे थे वो 26 हो गया, 35 वाला 28 हो गया, 39 वाला 28 हो गया। तो इट इज बेटर, दिस प्रिडिक्शन इज बेटर देन एटलीस्ट द एवरेज वैल्यू, ठीक है। एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, टू कंप्यूट द प्रिडिक्शन वी विल हैव दिस फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू जो 27.7 हमने जो एवरेज निकाला था, प्लस 0.1 विच इज माई लर्निंग रेट LR इनटू द रेजिडुअल्स ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो इसके बेसिस पे वी कैन डू द प्रिडिक्शन। अभी सिर्फ एक ही रो के लिए यहाँ नीचे सॉल्व किया, बट यू कैन सॉल्व इट फॉर ऑल ऑफ देम एंड यू विल गेट द प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे। एंड नाउ यू विल कंप्यूट द न्यू रेजिडुअल्स, जो हमारा प्रिडिक्शन आया तो बेस्ड ऑन दैट वी विल कैलकुलेट द न्यू रेजिडुअल। ओरिजिनल रेंट वाज 15, predicted value is 26.4, average this new error is -11.4, 10 minus 26 is -16। तो ऐसे करके ये पूरा बन गया। रेंट माइनस प्रिडिक्टेड वाला कॉलम हमने माइनस करके न्यू एरर वाला कॉलम जनरेट किया यहाँ पे। सो दिस इज माय न्यू रेजिडुअल ऑफ द सैंपल। तो ऐसे करके आप मल्टीपल मॉडल ट्रेन कर लोगे, वन बाय वन उसके ऊपर इंप्रूव करते जाओगे। सो repeat the same process with the added trees in sequential manner such that we are having the minimal losses, loss को minimize करना है। and the formula will remain this, new prediction equal to initial prediction plus learning rate into residual। and every time हम जैसे आगे 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 बढ़ रहे हैं तो हमारा ये वाले वैल्यूज अपडेट होते जाएंगे। ये वाला तो अभी पीछे हमने देखा ही है, अगली बार ये आएगा, अगली बार उससे कुछ और आएगा। तो जब तक हमारे नंबर ऑफ इपॉक्स नहीं खत्म हो जाते तब तक आप चलते जाओगे। एंड यूज ऑल द ट्रीज इन द ensemble। जब आप ऐसा कुछ कर लोगे देन यू विल हैव टू डू द ensembling ऑल्सो। तो जब सारे ट्री बन गए, you have to find, you have to use this formula ft plus 1 equal to ft plus lambda h t plus 1, where my ft plus 1 is the next prediction which is my final prediction, ft is my base, and t plus 1 तो हमें पता ही है t and t plus 1 is time के वन बाय वन हम आगे जा रहे हैं। lambda is my learning rate and st plus 1 is models growing sequentially। so the formula has been explained here and वन बाय वन हम आगे जाके हमारी sampling भी होती जा रही है हर बार। so now summary of gradient boosting machine, actually this is not just a summary of gradient boosting machine, इसमें मैंने ppt में edit नहीं किया। now we are just summarizing the gradient boosting regressor, ये machine नहीं है, यहाँ regressor आएगा। so build the first weak learner using a sample from the training data, you can consider a decision tree as the weak learner। तो ये वही सारे steps हैं जो पीछे हमने किए हैं कि आप इनिशियली पहले बना लो, फिर predictions लिख लो, फिर उसका नेगेटिव ग्रेडियंट निकाल लो। द नेगेटिव ग्रेडियंट इज in our case the residuals जो हमारे error आ रहे थे, which are computed and these residuals are the new response or target values for the next weak learner। तो ऐसे करके हम जो जो gradient निकालते जा रहे हैं, अगली आगे आगे जा रहे हैं बढ़ते हुए, तो वो हमारा पिछले वाला is the input of the next one। इस केस में ग्रेडियंट्स जो हमारे रेजिडुअल आ रहे हैं वो हमारे इनपुट हैं रेदर देन द मिस क्लासिफिकेशन। तो a new weak learner is built with the residuals as the target variables and sample of observations for the original data। and these are the summarizing third last 3 points। add the predictions, जो पीछे प्रोसेस है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, so you can read it on your end। I will give you the slide। जो पीछे अभी न्यूमेरिकल डिस्कस किए वही एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टिल नाउ इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क। इसके बाद मैंने अभी क्लासिफिकेशन शुरू करना है इसका, जीबीएम का क्लासिफायर। इफ यू हैव अ डाउट इन जीबीएम रिग्रेसर यू कैन आस्क एनीवन। You can write in chat if you have no doubt, or if you have a doubt you can write in chat, otherwise I will continue। so classify शुरू करने से पहले till now summarizing। so to summarize till now the gradient boosting algorithm works like this: we have to find the residual, fit a new model on the residual, or add the new model to the older model and continue to the next iteration। तो ऐसे करके हम चलते जाएंगे based on residual instead of misclassification। now क्लासिफिकेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द टाइटैनिक डेटा सेट। वी ऑल नो कि टाइटैनिक
में इनिशियली फीमेल्स एंड चिल्ड्रन को हटा मतलब पहले भेज दिया गया था, तो वो सारे बच गए, सपोज वो हमारे सरवाइव कर गए, ठीक है। वर्सेस जो मेल्स हैं, अब मेल्स में कुछ डेथ रेट था, ये वाला नहीं बचा, ये वाला भी नहीं बचा, और ये वाला बंदा भी नहीं बचा। नाउ वी हैव टू वर्क अराउंड दिस डेटा सेट, ठीक है। So, to predict whether the person will survive or not, we have this problem. Now we have to implement the gradient boosting. जो भी पीछे रेसिडुअल वाला देखा है उससे मिलता जुलता है बट थोड़ा अलग है. We have to do the classification now. So this is the problem. Initially हमारे पास जो डेटा सेट है, we will calculate the initial prediction for every individual using this log of odds. अब क्या होता है, मतलब एक नॉर्मल सा कहने को हम बोलते हैं कि व्हाट आर द ऑड्स, ठीक है, मतलब क्या बनेगा, क्या लग रहा है, तो ऐसे करके हम जैसे क्रिकेट में बोलते हैं, तो उससे मिलता जुलता कुछ है ये ऑड्स. क्या है ऑड्स का डेफिनेशन? इज दैट सर्वाइव्ड डिवाइड बाय नॉन सर्वाइव्ड. तो यहाँ पे सर्वाइव वाले 4 थे, नॉट सर्वाइव वाले 3 थे, तो इसका आपने लॉग नेचुरल लेना है, ठीक है। यहाँ पे लॉग लिखा है बट इट इज लॉग नेचुरल, तो लॉग टू द बेस ऑफ 2.71 इज माई लॉग नेचुरल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ई लिख दोगे, तो ई का वैल्यू इज 2.71 4/3. तो जिसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.29 फॉर आवर पर्टिकुलर डेटा सेट, क्योंकि हमारे पास 4 बचे थे और 3 नहीं बचे थे. सो कैलकुलेट द इनिशियल प्रिडिक्शन. हमारा इनिशियल प्रिडिक्शन इज 0.29 फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ये 0.29 is my odds, but then if we want to write the value of the initial prediction, क्योंकि अभी हम उसको probability में भी convert करना चाहते हैं, we don't want to just write the odds, तो probability के लिए we will apply this formula, sigmoid से मिलता जुलता formula है. Just a second, yeah. E to the power log of this, तो जो 0.29 आया था आप यहाँ पे लगाओगे e to the power 0.29 डिवाइड बाय 1 प्लस e to the power 0.29, तो इसको सॉल्व करोगे you will get 0.57. So for all the rows we have got the initial prediction as 0.57, ठीक है. Now uh, the second step is that you have to calculate the residuals. तो residuals तो निकालनी है, प्रोसेस तो यही है कि रेजिडुअल निकालो, उसके ऊपर इम्प्रूव करो. सो इफ माई इनिशियल प्रिडिक्शन इज 0.57, रेजिडुअल क्या होगा? रेजिडुअल विल बी द एरर, कि भाई कितना दूर हो तुम अपने प्रिडिक्शन से. तो प्रिडिक्शन मेरा ये है, ओरिजिनल वैल्यू वाज 3 पीपल के लिए था कि वो नहीं बचे, तो उसका जो डिफरेंस होगा ये वाला, इट विल बी एक्चुअल मैंने प्रिडिक्टेड, तो 0 माइनस 0.57, तो इसका माइनस 0.57 आ जाएगा. और जो बच गए थे सारे, तो दैट विल बी 1 माइनस 0.57, इसका विल बी 0.43, ठीक है. तो ये वाले वैल्यूज को अभी हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द रेजिडुअल्स. तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट द रेजिडुअल वाला कॉलम. रेजिडुअल कॉलम इज माइनस 0.57 एंड प्लस 0.43 डिपेंडिंग ऑन बचा के नहीं बचा बंदा, ठीक है. सो कैलकुलेट द रेजिडुअल्स फॉर एवरी सैंपल. तो ऐसे करके हमने निकाल दिया. उसके बाद आगे क्या करेंगे? वी विल कंस्ट्रक्ट द मॉडल. अब मॉडल बना के देख लेते हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा देखेंगे आगे जाके क्या करना है. तो एक डिसीजन ट्री बेसिक सा बनाते हैं, एंड लेट्स से वी हैव टेकन दिस सेक्स इक्वल टू मेल वाला इनिशियली, ऊपर हमने टॉप पे ले लिया एज अ रूट नोड. सो अगर मेल है तो फिर चेक करो एज लेस देन 10, मतलब डिपेंडिंग ऑन अ रूल ऑफ डिसीजन ट्री, कार्ट मॉडल कह लो, जो मर्जी कह लो, उसके बेसिस पे हमने ये बना लिया. सो वी विल नाउ बिल्ड ए मॉडल विच इज एम्ड एट प्रिडिक्टिंग द रेजिडुअल्स. इन अदर वर्ड्स एवरी लीफ विल कंटेन ए प्रिडिक्शन एज टू द वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल, ठीक है. तो ऐसे करके लेट्स से हमने ये जनरेट कर लिया, एंड डिपेंडिंग ऑन दीज लीफ नोड्स नाउ वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे 3 3 आ रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑन द टॉप ऑफ रेजिडुअल्स. जो हमारे रेजिडुअल्स हैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं. सो आउटपुट तो निकालना ही पड़ेगा, जो भी हमारे लीफ हैं वी हैव टू गेट सम आउटपुट आउट ऑफ देम. तो आउटपुट लीफ कैसे निकालेंगे? आउटपुट वैल्यू, this is the formula, sum all the residuals and divided by summation of previous probability into 1 minus previous probability. तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है. तो सम ऑफ रेजिडुअल्स तो हमें पता ही है, ये हमारे रेजिडुअल्स हैं जैसे. तो इनिशियली हम पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं 0.43 के लिए, उसके बाद मैं सेकंड वाले पे जाऊंगा. सो इनिशियली 0.43 के लिए अगर सॉल्व करें, वी विल डू दिस. तो 0.43 वाले का इनिशियल जो प्रोबेबिलिटी था इट वाज 0.57, ठीक है. तो 0.43 डिवाइड बाय 0.57 इंटू 1 माइनस
0.57, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा सिर्फ ये वाले नोड के लिए, मतलब क्योंकि 3 लीफ है 1 2 3, तो फर्स्ट लीफ के लिए हमारा प्रेडिक्शन इज आउट कमिंग आउट टू बी 1.75। सिमिलरली सेकंड लीफ के लिए करेंगे तो -0.57 था 3 टाइम्स, तो वी विल डू द समेशन -0.57 3 टाइम्स डिवाइड बाय 1 माइनस, ऐसे करके सारा आ जाएगा, ठीक है। 0.57 इंटू 1 माइनस 0.57, सारा सॉल्व करके आर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी -2.3। सो ये सेकंड लीफ नोड के लिए हो गया, ऐसे थर्ड के लिए कर लेंगे। वी विल सॉल्व, उसको सम करेंगे डिवाइड बाय ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सारा कुछ करके फिर से 1.75 आया। नाउ अब लीफ, अब ये वाला कैसे आएगा, लेट्स सी। अब यहाँ पे मेरा लीफ आउटपुट आ गया सारा, जो हमारे पीछे हमने कैलकुलेट करे हैं वो सारे वैल्यू यहाँ पे फिल कर दिए। नाउ कंप्यूट द प्रिडिक्शंस, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू कंप्यूट द प्रिडिक्शंस, न्यू लॉग odds इक्वल टू इनिशियल लॉग odds प्लस लर्निंग रेट इनटू this। तो यहाँ पे लर्निंग रेट 0.6 लिया गया है, फॉर एग्जांपल 0.6 की बजाय आप कुछ और भी ले सकते हो, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन सेक। इनिशियल हमारा 0.29 आया यहाँ पे। इनिशियल लॉग ऑड्स वर 0.29 जो हमने इनिशियली देखे थे पीछे, एंड आउटपुट वैल्यू गिवन बाय जो हमारा लीफ नोड आया है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट रो के लिए यहाँ पे सॉल्व किया इतने एरिया में। आई एम हाईलाइटिंग इट, दिस इज माय फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो। तो ऐसे करके आप मल्टीपल रोज के लिए सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज के हमारे, अगर पॉइंट ये था -2.3 तो यहाँ पे -2.3 आ जाएगा। 1.75 था तो 1.75 यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी तो सारा सेम ही है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे जो वैल्यूज आ रहे हैं -1.09 ये वो, तो नाउ वी विल फिल द कॉलम। न्यू लॉग ऑड्स हमारा आ गया, जो हमने पीछे 2 के लिए किया था वो सब के लिए करेंगे, तो ये सारे वैल्यू हमारे सामने हैं, ठीक है। दीज आर द प्रिडिक्शंस। नाउ कंप्यूट द प्रिडिक्शंस। यहाँ पे हमारा जो आया था वो फिल कर दिया हमने सारा, एंड एज अर्लियर वी कांट यूज द वैल्यू डायरेक्टली। अब इसको भी वैल्यू तो नहीं लेना, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला e टू द पावर log of odds divided by 1 plus e to the power log of odds, तो you will get the value 0.25 0.8 ऐसे करके बहुत सारे हमारे वैल्यू आ जाएंगे। मतलब यही दो का वेरिएशन है सारा, 0.25 एंड 0.8। तो न्यू प्रिडिक्शंस का हमारा ये कॉलम बन गया, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द न्यू रेजिडुअल्स। न्यू रेजिडुअल्स कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वाइव था 0, दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू, 0 माइनस 0.25, 0 minus 0.25 is -0.25, 1 minus 0.8 is 0.2, 1 minus 0.8 again 0.2। तो सर्वाइव वाला कॉलम माइनस न्यू प्रिडिक्शन इक्वल टू न्यू रेजिडुअल, न्यू एरर ये आया हमारा। सो नाउ यू हैव टू बिल्ड ए मॉडल अगेन। तो ऐसे करके मल्टीपल मॉडल बना लोगे एंड यू कैन गेट द जॉब डन। सो फॉर्मूला भी यहाँ पे नीचे सेम लिखा हुआ है वैसा सा। Now let's talk about extreme gradient boosting. So extreme gradient boosting is one of the superstar in the machine learning community, and it has the potential to beat even deep learning models in the Kaggle competitions. Personally, I have worked on different challenges जहाँ पे XGBoost वाले लोग जीते देखे हैं मैंने। इसके टोटल 4 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट थिंग इज पैरेलल कंप्यूटिंग। बैकएंड पे चाहे वो कर सीक्वेंशियल मॉडलिंग ही रहा है, बट उसको वो पैरेलल प्रोसेसिंग से बैकएंड पे कर रहे हैं सॉल्व। द सेकंड एडवांटेज इज दैट ट्री प्रूनिंग यूजिंग द डेप्थ फर्स्ट अप्रोच। तो यहाँ पे ट्री प्रूनिंग भी हो रही है। आई विल शो यू द एग्जांपल वो प्रूनिंग कैसे कर रहा है बैकएंड पे, एंड मिसिंग वैल्यूज हैंडल हो जाती हैं, रेगुलेशन हो जाती है। सो दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ XGBoost। अब देखते हैं इनको कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, XGBoost काम कैसे करता है। सो XGBoost का हम एक रिग्रेशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स more easily. So let's say we have this table in which we want to uh, do something। यहाँ पे ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टू कंस्ट्रक्ट ए मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग द मार्क्स, ठीक है। सो नाउ वी वांट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ द पर्सन, कि भाई उस बंदे ने कितना टाइम लगाया और उसके कितने मार्क्स आए। तो ऐसा कुछ एक डेटा सेट गिवन है बेसिक सा, एंड वी हैव दीज पॉइंट्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इसके ऊपर हमें रिग्रेशन लगाना है यूजिंग XGBoost। अब देखते हैं इसको बैकएंड पे हो क्या रहा है इसके अंदर। फर्स्ट step is to perform the initial prediction and calculate the residuals. We will start
विद एन आर्बिट्ररी इनिशियल प्रिडिक्शन। और यहाँ पे लिखा है दिस वुड बी 0.5, और ये 0.5 ऐसे नहीं लिखा। इन प्रैक्टिस मैक्सिमम केसेस में बैकएंड पे 0.5 इनिशियल प्रिडिक्शन लिया जाता है। सो आप रेसिडुअल कैलकुलेट करोगे, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। सो एक्चुअल वाज -8.5, माइनस 0.5 करोगे तो -9 हो जाएगा, 6 माइनस 0.5 करोगे तो 5.5 हो जाएगा। ऐसे करके चारों रेसिडुअल आ गए अपने पास। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ ये वाला जो 0.5 वाला बीच में लाइन दिख रहा है, दिस इज द प्रिडिक्टेड मार्क्स बाय डिफॉल्ट, रेड वाला लाइन। और कितना दूर है वो हमने रेजिडुअल भी निकाल लिए, -9, 5.5 ऐसे करके सब कुछ आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द सिमिलैरिटी स्कोर। ये सिमिलैरिटी स्कोर निकालना क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। नीचे देखो, क्रिएट एक्जीबूस्ट रिग्रेशन ट्री। तो बनेगा कैसे, क्रिएट ए वीक लर्नर विद ए रूट नोड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रेजिडुअल वैल्यूज एंड कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर। डिसीजन ट्री बनाने की बात हो रही है और उसके लिए सिमिलैरिटी स्कोर निकालना है। सिमिलैरिटी स्कोर निकलेगा कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे काफ़ी स्लाइड्स हैं आगे। सो sum of square of sum of residuals divided by number of residuals plus lambda. So lambda is my regression parameter। यहाँ पे इस केस में for this particular slide यहाँ पे lambda को 0 ले लिया गया है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, अपने चारों रेसिडुअल्स को ऐड करो, उसको होल स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 4 करो, यू विल गेट द 3.06 वैल्यू। सो क्रिएट एक्जीबूस्ट रिग्रेशन ट्री, जो भी यहाँ पे लिखा था हमने, उसके लिए सिमिलैरिटी स्कोर निकालना सीख लिया है। अब यहाँ पे वी विल सी कि भाई टाइम स्पेंट में अगर मैं कुछ पार्टीशनिंग कर दूं, कि मैं सिर्फ इनको अलग अलग कर दूं, अगर स्प्लिट करना है तो मैं टू टू से अगर स्प्लिट करता हूँ तो ये अलग हो जाएगा, बाकी तीन अलग हो जाएंगे। उसके बेसिस पे हम सिमिलैरिटी स्कोर चेक करेंगे, फिर उसका मैक्सिमम आएगा और उसमें से बेस्ट लिया जाएगा। वो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सो इनिशियली वी हैव सीन कि भाई सिमिलैरिटी स्कोर निकालना कैसे है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इफ वी से कि मैंने पार्टीशन किया दैट टाइम स्पेंट लेस देन 2, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने क्या किया, -9 वाला अलग कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये -9 अलग हो गया, बाकी तीनों अलग हो गए। एंड आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला लाइन अगर 0.5 है, तो अगर मेरा ये वाला पॉइंट वॉज 9, तो नहीं नहीं, ये 8.5 था, -8.5 था। तो -8.5 से 0.5 तक जाने के लिए ये यहाँ पे -9 है, पीछे है जो नीचे उससे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कैसे सॉल्व करोगे सिमिलैरिटी स्कोर, इट विल बी समेशन ऑफ ऑल द रेसिडुअल्स, इसमें एक ही है तो -9 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेसिडुअल्स, यहाँ पे एक है और लैम्डा हमने लिया 0, तो इसको सॉल्व करोगे 81 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप इसको करोगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हो क्या रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है व्हेन द वैल्यूज ऑफ रेसिडुअल्स आर वेरी डिफरेंट द वैल्यूज विल कैंसिल आउट एंड द सिमिलैरिटी विल बी लो, ठीक है। अब इस केस में हमने इन तीनों को जब ऐड करना है, वी विल सी 5.5 प्लस -7.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे वैसे तो तीन हैं दिखने के लिए, लेकिन बिकॉज आई नो कि ये आपस में कट रहे हैं, तो जब मैं इसको होल स्क्वायर कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ही बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 ही लिखूंगा, 1 + 0, ठीक है। अगर ये अलग अलग होते और आपस में कटते ना, तब यहाँ पे 3 आता, इस केस में 1 है, तो ऑब्वियसली 5.5 होल स्क्वायर इज 30.25, तो यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी। तो 81 इधर का आ गया, 30.5 30.25 इधर का आ गया। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड, एक सेकंड यहाँ पे है स्लाइड में, तो वही सीधा डिस्कस करते हैं। सो कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर, ये हमने कर लिया और सबका इंडिविजुअल वाला आ गया। ऊपर वाले का इनिशियली वाज 3 एंड 81 इसका है अकेले का, प्लस 30.25 इसका है। So now if you calculate the gain, the formula says that you have to add all the values at the leaf part and minus the root part, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे 81 + 30.25 - 3.06, you will get the value of similarity 108.19। तो this is the way to calculate the gain, this is information gain, information gain की बात हो रही है, and information gain was used in ID3 method, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वैसे करके लिंक कर लो कि इंफॉर्मेशन गेन की बात हो रही है। ओके, सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द गेन फॉर दिस होल थिंग। नाउ लेट्स कैलकुलेट द गेन फॉर द अदर थ्रेशोल्ड्स।
अभी हमने पहले क्या किया था, हमने सिर्फ -9 को एक साइड पे किया था और टाइम स्पेंड लेस देन 2 किया था। अब टाइम स्पेंड लेस देन 3.5 कर देते हैं। एंड अगर मैं 3.5 कर दूंगा तो ये दो चीज़ें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, तो इनका ये दो वैल्यू है। कैसे करोगे, सम करोगे, ठीक है, 5.5 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 0। तो 5.5 का होल स्क्वायर, नहीं पहले तो इसको माइनस कर लेते हैं, इट विल बी -3.5, -3.5 का होल स्क्वायर इज 12.25, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज 6.125, ये मेरा आ गया इधर। एंड अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 0 ओनली, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस थिंग, हमारे पास अलग अलग वैल्यू भी आ गए और बेस्ड ऑन लेस देन 3.5 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड ओवरऑल हमारा स्कोर आया 6.125 प्लस 0 -3.06, तो आंसर आया यही वाला, ठीक है, 3.065। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम इसी चीज़ को 5.5 कर देते हैं, ठीक है, अगर इसी चीज को 5.5 या 5 भी कर देते तब भी चलता। सो दीज थ्री आर ऑन वन साइड, इन तीनों को एक साइड पे कर लो। सो -9 प्लस 5.5 प्लस -7.5, तो ऐसे करके सॉल्व किया तो 40.3, इधर आया 56.25। तो ये आ गया। एंड इफ यू सॉल्व इट -3.06 करके, फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 93.49। सो ये आ गया। अब इसमें से बेस्ट कौन सा हुआ, बेस्ट हुआ जो हमने सबसे पहले किया था लेस देन 2 वाला, बिकॉज उसमें 108 समथिंग आया था, ठीक है। नाउ select the best gain comparing all the three models above, the first tree gave the highest and is therefore the best split, तो लेस देन 2 वाला चलेगा। सो स्प्लिट द ट्री फर्दर एंड सेलेक्ट द बेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग की बात हो रही है कि और अब इसको तोड़ना है, ये वाले को, जो ये तीन हैं इनको हम और अलग कर सकते हैं। अगर और अलग करके देखना है तो फिर थोड़ा सा रेगुलेशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उतनी आप डेप्थ लेके जा रहे हो, डेप्थ लेके जाओगे। अब देखो मैं यहाँ पे रेगुलेशन लगाने का रीजन बताता हूँ। अपना यहाँ पे है डेप्थ इज 1, ठीक है। अब अगर आप इसको तोड़ोगे तो एक और डेप्थ बढ़ा लोगे तो डेप्थ हो जाएगी 2। तो जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे उतना ही ओवरफिटिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा। अब उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा रेगुलेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रेगुलेशन कर रहे हैं हम तो वो देखते हैं कैसे करेंगे एंड इसमें क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी से निपटाते हैं इसको। सो यूजिंग द ट्री विद द हाईएस्ट गेन, ऐसे करके हमारा ये बन गया। ईच नोड विल स्प्लिट इनटू फर्दर सब नोड्स एंड द नोड विल स्टॉप स्प्लिटिंग व्हेन इट हैज ओनली वन रेसिडुअल लेफ्ट, या तो वो अकेला रह गया या फिर आपका जो मैक्सिमम इटरेशन था वो रीच हो गया। सो वी विल नॉट स्प्लिट द लेफ्ट लीफ, ठीक है। यहाँ पे इस केस में हमने सिर्फ एक ही रहेगा तो इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, राइट वाले पे फोकस करेंगे। अगर राइट वाले को मैं स्प्लिट करता हूँ एंड आई डू इट विद टाइम स्पेंड लेस देन 3.5, तो मैंने यहाँ पे गेन निकाला सबका। तो 3.5 के लिए 10.08 आया था, अलग अलग करके 30.25 इसका आ गया, 0 इसका आया, तो 30 प्लस 0 -10 20 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये आ गया हमारा इधर वाला। So split the tree further and select the best split. Now इससे क्या हुआ, अगर हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने सिर्फ 5.5 इधर रखा था। अगर हम 5.5 के साथ -7.5 इधर रख दें, ठीक है, 3.5 की बजाय 5.5 कर दें ये वाली चीज को यहाँ पे, तो मेरा आ रहा है 2 एंड 56.25, तो सॉल्व करके 48.17 आ रहा है। तो इनमें से जो भी अच्छा हुआ वो रख लेंगे। सो रेगुलेशन क्या कह रहा है, रेगुलेशन इज ट्री प्रूनिंग प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग with the help of threshold parameter gamma, and a branch containing the terminal node is pruned when gain is less than gamma। तो भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा गामा की वैल्यू सपोज 30 होती, ठीक है, सपोज मेरा गामा इज 30, तो मेरा जो गेन आया, जो मेरा गेन आया उसमें से ये माइनस करो, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ठीक है करते रहो स्प्लिट, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप रुक जाओ, ठीक है, तो फिर हमें प्रून करना पड़ेगा, तो हम स्प्लिट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ये बेसिक सा आइडिया यहाँ पे दिया गया है कि आप गामा के बेसिस पे काम कर लोगे। एंड यहाँ पे वही लिखा हुआ है दैट इफ माई गामा इज इक्वल टू 30 द गेन ऑन द लोएस्ट ब्रांच इज 48 एंड मोर देन 30 सो इट विल नॉट बी रिमूव्ड। तो इनिशियली हमने जो किया था वो मेरा 108.19 वाला जो आया था, एक तो वो, उसके साथ ये वाला अगर आप कर दोगे तब भी आपका दोनों केसेस में पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। इनिशियली मेरा 108 आया था, अगर मैं लेवल
1 तक जा रहा था, अब लेवल 2 तक आया डेप्थ में, तो फिर भी पॉजिटिव है तो चलेगा। एंड नाउ सो रेगुलेशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1, पीछे गामा था, अब लैम्डा की बात हो रही है। देयर आर 2 पैरामीटर्स, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। वो गामा था पीछे, अब लैम्डा की बात हो रही है। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 द सिमिलैरिटी स्कोर श्रिंक्स। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था समेशन ऑफ ऑल द रेजिडुअल्स जो हम सम कर रहे थे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजिडुअल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस दिस लैम्डा। तो जो ये लैम्डा है, अगर ये वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली फिर ये श्रिंक होना शुरू कर देगा ना, क्योंकि अगर आप 1 या 1 से ज़्यादा रखोगे, वैसे तो ये 1 ही होता है मैक्सिमम, ये रेशो होती है कि आप कितना ज़्यादा रेगुलराइज करना चाह रहे हो। तो लैम्डा अगर 1 आप रख रहे हो तो काफ़ी हाई वैल्यू है, ठीक है। तो नाउ लोअर वैल्यू ऑफ सिमिलैरिटी स्कोर विल आल्सो डिक्रीज एंड द वैल्यू, मतलब वही सब लिखा हुआ है कि अगर जितना बड़ा लैम्डा होगा उतना ज़्यादा वो हमारा वैल्यू को श्रिंक करेगा, सिमिलैरिटी स्कोर को। सो इन दिस केस, सो इफ मैं इनिशियली यहाँ पे सिमिलैरिटी स्कोर वाज 3.06 रूट का, फिर यहाँ पे इनको किया तो 48.17 आया। कैलकुलेट द आउटपुट वैल्यू। now output value has to be calculated by using this formula, sum of residual divided by number of residual plus lambda, ठीक है, एंड कैलकुलेट द आउटपुट वैल्यू। अब ऑब्वियसली पीछे वाले फॉर्मूला में अगर आप सारे वैल्यू डालोगे तो आपको ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा, -9, -1, 7.5। तो वो आपको यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ठीक है। इन रेगुलर gradient boosting machine, the output value is the mean of all the residual values within the each terminal node without the lambda. When lambda is greater than 0, it will decrease the output, and obviously it will keep the final prediction in check. देखो लैम्डा लगाओगे रेगुलेशन होगा तो थोड़ा सा स्लो कन्वर्ज होगा, ठीक है, एक बार में वो बड़े बड़े जंप नहीं मारेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि लैम्डा को थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ाओ एंड इट विल डिक्रीज द आउटपुट वैल्यू। जो ये 7.5 या -1 है तो इसको तो वो थोड़ा ठीक करेगा, ज़्यादा बड़े जंप नहीं मारेगा। सो कैलकुलेट द फाइनल प्रेडिक्शन, ये फॉर्मूला होगा इनिशियल प्रेडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू आउटपुट वैल्यू, एंड यूजिंग दैट you can fill this thing. सो सिमिलैरिटी स्कोर 3.06, ये वाला पूरा टेबल लेफ्ट हैंड साइड पे जी बना हुआ है, एंड द टेबल इज गेटिंग फिल्ड नाउ। सो वी हैड दीज 3-4 थिंग्स इनिशियली, यहाँ तक था -9, 5.5, ये वाला तक हमने किया हुआ था। सो नाउ प्रिडिक्शन इज कमिंग आउट टू बी -2.2, 0.2, ये हमारे प्रिडिक्शंस आए हैं जो हमने नीचे सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला, फाइनल प्रिडिक्शन इक्वल टू इनिशियल प्रिडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू द आउटपुट वैल्यू। फाइनल प्रेडिक्शन इक्वल टू जो हमारा इनिशियली 0.9 था, 0.9, 0,9 है। सो दिस इज 5.5 एंड -7.5, दिस इज 7.5, ठीक है। ये 0.9 करा हुआ है यहाँ पे। सो डिपेंडिंग ऑन दिस, ये 0.9 है, -9 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला में डालो इनिशियल प्रेडिक्शन इज 0.5 प्लस 0.3 इज लर्निंग रेट, ये 0.3 कंसिस्टेंट है नीचे तक। आउटपुट वैल्यू इज -9, -1 एंड 7.5, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू -2.2, 0.2 एंड 2.75। तो based on this prediction you can find the new residual error. New residual error will be actual value जो मेरे ये थे -8.5, और अगर आप इसको माइनस करोगे तो you will get -6.3, 6 minus 0.2 is 5.8, -7 minus this is -7.2। तो initial marks minus the prediction, it will be the new error, ठीक है। And based on that continue all these steps till you reach the smallest रेजिडुअल वैल्यू या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस। अगर आपके इटरेशन ही खत्म हो गए तब आप वहां पे जाके रुक सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इतना ही था। आई वांटेड टू डिस्कस ऑल दीज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन यू हाउ द एक्सजी बूस्ट वर्क्स, हाउ द ग्रेडिएंट डिसेंट वर्क्स, this gradient boosting machines work for the regression. So we have covered 3 things in detail in this video. We have discussed the GBM regression का हमने एक एग्जांपल देखा था। We have seen the example of GBM classification, and we have seen the detailed example of XGBoost का regression, ठीक है। We have seen these 3 examples in detail, and I hope you have uh, the more detailed idea now ये होते क्या हैं। बहुत नाम सुना था XGBoost के बारे में, but now we know that how it works,
ठीक है, so we will implement this in the coming lab in detail. So that's it for today, and thank you for attending the class. Yeah, bye.